Hi dear student, how are you? I hope you all are fine. So student, in this video we discuss about structure of periodic table. We have done first structure of periodic table means S block elements. Today I will discuss about P block elements. Actually P block or P orbital have total number of electrons 6. So P block consists with 6 group. As usual, in previous video we discussed about s orbital contain 2 electrons, so s block have 2 groups. As it is p block means p orbital contains 6 electron, so it have total number of group 6 groups. And how we define it is p block elements means the element which last electron enter in an s2 and np1 to 6 orbital, means last electron enter in p orbital, that is called p block elements. So it is like a previous concept. And one more thing which is special for p block elements, actually every elements which is present in p block, its electronic configuration finish at p orbital. Okay, got it? So let us start new video. So one more things, element of p block elements, sorry, p block elements, the element which last electron enter in 3p orbital. What is meaning of 3p orbital? I again discuss about 3p orbital. Actually p orbital have 3 subcells, 1 2 3. According to class 11 it have few name, px, py and pz. It is according to high level class 11th, but we discuss about class 10, so we don't take it seriously what is the meaning and why we take this name, and what is the criteria by using this we nominate it. Okay, so again listen, according to Hund rule, if you not know then don't worry. First we fill one electron, then second, then means we arrange each electron first in unpair form, again we do pair it. Okay, it is also follow of our rules, about of our rules of our principles. it arrange increasing energy level. ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी हिंदी में. जो ये हमारा पी ब्लॉक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पी ऑर्बिटल पर ही फिनिश होता है. चलिए ठीक है. दूसरी बात क्या है, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कभी कभी सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, what is the general electronic configuration for p block element. Actually ns2, n means any number 1 to 7 हो सकता है, और इधर भी n का मतलब any नंबर. इधर p क्या है, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल. s में हमेशा 2 ही होंगे, बट यहाँ p में 1 भी हो सकता है और 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है. सब क्या मतलब हो, कब 1 आएगा, कब 2 आएगा, कब 3 आएगा, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे. और एक चीज़ और हमने आपको बताया, p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. So total number of group is number of group in P block. आपको पता होगा क्या होगा, 6 ग्रुप होंगे. और अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो स्ट्रक्चर में जब हमने बनाया था पहले वीडियो में तो दिखाया था कौन कौन से ग्रुप आते हैं. ये 13 से स्टार्ट होता है, 18 पे फिनिश होता है. चलिए, ये तो इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन था. अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पी ब्लॉक, उनमें ग्रुप कौन कौन से आते हैं, उनको किस ट्रिक से हम लर्न करेंगे, कैसे रिमेंबर रखेंगे, और साथ में ही उनके एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड करेंगे. पिछले वीडियो में हमने बोल दिया था कोई भी एटॉमिक नंबर आपको लर्न नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे. आपकी अगली हेडिंग होगी ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर. आपकी अगली हेडिंग है ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर for P block. Trick to find atomic number for P block element. P block element. एक्चुअली अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक रूल दिया था. रूल यहाँ पर भी वही है. इसमें रूल ये है, ग्रुप नंबर प्लस 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32 अगर होगा तो. अब देखिए यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, वहाँ पे प्लस 8 8 प्लस 18 18 32 था ना,
और यहाँ पे एक चीज और आएगा, अगर ये जीरो ग्रुप के लिए होगा तो जीरो ग्रुप के लिए तो क्या होगा, फॉर जीरो ग्रुप यूज रूल ऑफ एस ब्लॉक। जो आपका एस ब्लॉक का रूल था, अगर जीरो ग्रुप के एलिमेंट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो वही करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, थर्ड वी ग्रुप का, इसको हम लोग कहते हैं ये 13 ग्रुप है। चलिए इसका ग्रुप नंबर क्या है, थर्ड है। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स आते हैं। अब इन्हें याद करने की क्या ट्रिक है, तो आप मेरे साथ ट्रिक लिख सकते हैं। इसका होगा बैगन, इसका होगा आलू, गाजर, इन थैला। मतलब कोई व्यक्ति था ना, वो गया था मार्केट, क्या क्या खरीदा देखो, बैगन खरीद लिया, आलू खरीद लिया, गाजर खरीद लिया, और इन थैला मतलब कि थैले में डाल दिया। चलिए भाई साहब, ये तो इसके ट्रिक थी, इसको कैसे याद करेंगे। जो हमारे थर्ड बी ग्रुप मतलब कि पी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है इसके एटॉमिक नंबर्स कैसे लर्न करेंगे। तो रूल क्या है, ग्रुप नंबर +2। तो ग्रुप नंबर यहाँ कितना है, 3 है। अब ये वाला मत जोड़िएगा, ये तो हमने ऐसे जनरल बताया था। तो ग्रुप नंबर 3 + 2 कितना आ गया आपका 5, एंड 5 + 8 कितना आ गया 13, 13 + 18 कितना आ गया 31। काउंट कर लीजिएगा, 8 3 11। फिर से आप जोड़ेंगे कितना आएगा 9 हो गया इधर, और 3 1 1 4 हो गया, ठीक है, यही ना आएगा। काउंट कर सकते हैं भाई, 18 जोड़ देते हैं तो एक जोड़ दिया 39 10 49, ठीक है। और फिर इसमें क्या जोड़ना 32। अगर आप 32 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 9 2 11 1 आ जाएगा, और 4 3 7 1 8 81 आ जाएगा। ये इसके एटॉमिक नंबर आ गए। देखा आपने कितने सिंपल तरीके से, क्या रूल था, ग्रुप नंबर, सॉरी मैंने यहाँ नंबर नहीं लिखा है ग्रुप नंबर +2 +8 +18 +18 +32 32। तो इस तरह से अभी तो यहाँ पे एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई नई पीरियोडिक टेबल में। जो एलिमेंट नया वाला आएगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें 32 आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 3 एंड 8 3 11 113 आ जाएगा। सपोज यहाँ कोई एलिमेंट था यू, तो एन जो भी लिखना हो, अभी इसको रहने देते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं जो कि हमारा अगला ग्रुप है, फोर्थ बी ग्रुप है। इसमें होता है काला, सिरका, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। ये हमारा फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इसके भी आप उसी तरह से रूल लगाइए, सबके एटॉमिक नंबर लिखिए। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर आप पे छोड़ता हूँ। क्या होगा, काला, सिरका, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, ठीक है। तो भाई सब आप देख रहे होंगे, काला, कार्बन, सिरका, सिलिकॉन, जर्मनी, जर्मेनियम, टिन, श्रीनगर, पीवी, पाव भाजी। तो इस तरह से हमने इनके लिए वे ट्रिक बना लिया। चलिए इनके एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं। कार्बन का कितना होता है, कॉमन सेंस लगाइए, 6 होता है। तो ये ग्रुप नंबर कितना 4, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। दूसरे क्रम से लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसके बाद आ गया सिलिकॉन, इसका कितना होगा 14, जोड़ते रहिएगा, ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर +2, देखिए 4 + 2 6 हो गया, फिर 6 में 8 जोड़ दिया, आप कितना गया 14, 14 में अगर आप 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 32, 32 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, और 50 में अगर आपने 32 जोड़ दिया कितना आ जाएगा 82, ठीक है। और भी अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा 114, अगला अगर एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है। तो अभी उतनी हम लोग को डीपली नहीं पढ़नी है, वो 11th लेवल का है सब। तो चलिए अगला देख लेते हैं, फिफ्थ ग्रुप का, फिफ्थ बी ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा ग्रुप कह सकते हैं, 15 ग्रुप। इसको और एक नाम से जानते हैं 14 ग्रुप। चलिए देखते हैं, ये हमारा
लास्ट इसके बाद हम आपको ट्रिक ही सिर्फ बताएंगे, ग्रुप नंबर निकालना, सॉरी एटॉमिक नंबर निकालना नहीं सिखाएंगे। पांचवें ग्रुप में हमारा आता है न्यूज़ पेपर, आज सब बिके। ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यूज़ पेपर मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्शिमनी, आज, सब, बिस्मत, बिके। देखा आपने कि आपने एक सिंपल सा लाइन क्या याद रखा, न्यूज़पेपर आज सब बिके, तो आपका आ गया नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सिमनी। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनके भी एटॉमिक नंबर फाइंड करते उसी तरीके से। ग्रुप नंबर कितना है 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, और फिर 7 + 8 कितना हो गया 15, फिर 15 + 18 कर देंगे कितना हो जाएगा 33, फिर क्या होगा 51, फिर क्या होगा 83, फिर आएगा 115। तो इस तरह से आपने देखा फिफ्थ ग्रुप के भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आ गए। हमने पहले से आपसे बोल रखा है कि एटॉमिक नंबर याद नहीं करना, रूल कितना सरल है। ग्रुप नंबर जो भी उसमें 2 जोड़िए 8 जोड़िए 18 18 32 32 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए छठवें ग्रुप में आ जाते हैं, आप कर रहे हैं तो सारे ग्रुप का कर लेते हैं। 6 भी, इसको सिस्टीन ग्रुप भी कहते हैं। इसका होता है ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी हो। भाई साहब ये देखिए, ये तो आज का ज़माना है, ये सब तो होता रहता है, तो आप क्यों पीछे हैं। इसको कहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी मारी हो। ठीक है, आप देख रहे हैं ना सबके सबके, ऑक्सीजन सल एस आर एन, सी सी एस ई, टी 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 ई, ओ पी ओ। तो ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ये हमारे 6 ग्रुप का ट्रिक है। और अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं अपना नंबर दीजिएगा कमेंट में, व्हाट्सअप नंबर, मैं उस पर भेज दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये पीरियडिक टेबल। ठीक है, उसमें सारी ट्रिक अच्छे से मेंशन की होगी, टाइप्ड फॉर्म में होगी। चलिए इसका भी एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। ग्रुप नंबर कितना है इसका 6, 6 + 2 क्या कर देंगे तो क्या आएगा 8, 8 + 8 करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर आएगा आपका 34, फिर आएगा 52, फिर आपका आ जाएगा 84, फिर अगर आपका आएगा तो 116 आएगा। अच्छा एक आपको मजे की बात बताया ना, ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया था। यही उन्होंने कहा था ना कि जो कार्बन फैमिली का मेंबर लास्ट वाला, सपोज ये कोई एलिमेंट एक्स है उस डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो यही ट्रिक लगाना था। तब उस समय ये हाल ही में डिस्कवर हुआ था ये एलिमेंट, तो 114 आया था, तो इसी ट्रिक से उसको निकालना था कि ये कौन सा एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब यही ऐड करके आपको निकालना था। बहुत लोग नहीं निकाल पाए थे। चलिए अब हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो हम 7th ग्रुप और 8 ग्रुप को बाद में देखते हैं, मतलब इसको इरेज करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट मत ले लीजिएगा, हमें कम से कम 2 ग्रुप तो हटाने ही पड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 7th ग्रुप की। 7th ग्रुप को हम कहते हैं 17 ग्रुप। उसका फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इसका ट्रिक होता है फिर फ्लोरीन, कल, क्लोरीन, बाहर, ब्रोमीन, आई, आयोडीन, आंटी। ठीक है, इसके लिए जो ट्रिक होगा वही रूल आप लगाइएगा, ग्रुप नंबर +2। तो ग्रुप नंबर कितना है 7 + 2 कितना हो गया 9, 17। ठीक है, अब आप इधर आ जाइएगा ब्रोमीन में। ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, तो ब्रोमीन का होता है, सॉरी फिर कल, बाहर, आई, आंटी, सही है। तो ब्रोमीन पे आ जाइए तो आप कितना आ जाएगा इसका 35, और आयोडीन का कितना होगा तो आप 35 में ऐड कर दीजिए, कितना ऐड करना आपको, फिर से 18 कितना हो जाएगा 54, फिर से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, अगर कोई एलिमेंट नया आएगा तो कितना आएगा 117 हो जाएगा उसका। चलिए फिर से देखते हैं, ग्रुप नंबर कितना है 7, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 54, 54 + 32 85, 50 and 85 + 32 117।
ये हमारे एटॉमिक नंबर्स आ गए 7 ग्रुप के एलिमेंट। एक लास्ट बचता है जिसे हम कहते हैं 0 ग्रुप, और इसी को हम कहते हैं 18 ग्रुप। चलिए 0 ग्रुप के लिए क्या कहते हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहे। तो भाई सब ग्रुप नंबर क्या है, 0 है। अब हमने यहाँ पे एक चीज लिखा, फॉर 0 ग्रुप यूज रूल ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या था ना, यहाँ 888 हो गया था, ठीक है। तो ग्रुप नंबर +2 करेंगे, 0 + 2 कितना आएगा 2, फिर +8 करेंगे कितना आएगा 10, फिर +8 करेंगे कितना आएगा 18, प्लस 18 करेंगे कितना आएगा 36, फिर 36 के बाद आप ऐड करते रहिए कितना आएगा 55, फिर क्या आएगा 86। अगर फिर से कोई एलिमेंट आएगा तो आ जाएगा 180, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलिए इसका ट्रिक कर लेते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से सारी ट्रिक्स से हमने एटॉमिक नंबर निकाल दिया और सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। अब दूसरी बात आती है कि एड्रेस क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए भी हम छोटा सा 1 मिनट का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा वही क्वेश्चन हम पूछते हैं, और उस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप भी रखते हैं। तो आपकी अगली हेडिंग होगी ट्रिक टू फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ना। तो हम छोटा सा लिखते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये किसके लिए है, ये स्पेशली पी ब्लॉक के लिए, फॉर पी ब्लॉक ना। चलिए सबसे पहला कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, क्लोरीन है उसी को ले लेते हैं, क्लोरीन। इसका देखिए पीरियड क्या, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए भाई अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है इस चीज़ में कि यहाँ पीरियड नंबर आप कैसे लिख रहे हैं, तो आप होल पीरियडिक टेबल को एक साथ चार्ट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बोर्ड पे सारी पीरियडिक टेबल एक साथ में नहीं बना रहा हूँ, मैं तोड़ तोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो। चलिए उसके पहले हमें क्या करना होगा, इसका एटॉमिक नंबर 70, फिर हमें करना होगा ऑफ वाउ के रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, उसके बाद आता है 2s2, 2p6, कितने हुए 6 4 10, देन 3s2, 3p6 एंड 4s2, काउंट कर लेते हैं 6 4 10, 10 और 18 हो गए। तो यहाँ तक नहीं जाएगा, 5 तक जाएगा। चेक करते हैं, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 5 17, 17 है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अगर नहीं है तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो वीडियो बैठ जाइएगा, और उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वहाँ से अच्छे समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना था। कहाँ पे है, 3 3 3, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर आखिरी का होगा उसको ढूंढना है, ये है। अब उस बड़े नंबर पे हमें क्या करना था, सर्कल करना था। उसमें जो ये पहला डिजिट होता है ये क्या था, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। इसका मतलब पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड का है। अभी हम लोग पीरियडिक टेबल में चलेंगे। और ये जो अल्फ़ाबेट था क्या था, ब्लॉक नेम। ये कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ठीक है। और ये जो इस पे ग्रुप का नंबर आता था, ऊपर जो डिजिट होता था वो ग्रुप नंबर होता था। लेकिन यहाँ ग्रुप नंबर का जो ट्रिक है, ग्रुप नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट s एंड लास्ट s प्लस p ऑर्बिटल। चलिए लास्ट में s यहाँ पर है और p यहाँ, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 7। इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर कितना आएगा, 7। ग्रुप नंबर इसका आ गया 7। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे समाप्त होता है तो उसी से हम क्या करते हैं, सब कुछ बता लेते हैं। मतलब ये जो डिजिट होती है, कोई भी डिजिट हो सकती है, वो होगा पीरियड का नंबर। जो अल्फ़ाबेट होता है वो ग्रुप का नाम, सॉरी ब्लॉक का नाम होता है, और उस अल्फ़ाबेट पे जो डिजिट होता है वो होता है ग्रुप नंबर।
लेकिन ये चीज़ सही होती है सिर्फ एस ब्लॉक के लिए। अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो क्या होता है, पी ब्लॉक में सारा रूल वही होता है, मतलब लास्ट डिजिट जो होता है बड़ा वाला वो होता है पीरियड का नंबर, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये जो अल्फ़ाबेट लास्ट वाला वो ब्लॉक नेम मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा जो यहाँ पे था ये होना चाहिए था फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट। लेकिन ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस के अलावा पी पर डी पर एफ पे ख़त्म होगा तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा लास्ट के एस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के बाद जो डिजिट आएगा वही होगा। मतलब लास्ट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 2, 5 + 2 7, इसका ग्रुप नंबर क्या आया, 7 आया। चलिए यहाँ पर आकर देखते हैं क्लोरीन किस पीरियड का, थर्ड। ये देखिए ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट किस ग्रुप का है, 7 ग्रुप। ये देखिए ये 7th ग्रुप का ही एलिमेंट है। दूसरा किस ब्लॉक का है, तो आपको पता हम लोग पी ब्लॉक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यही सीबीएसई बोर्ड ने बार बार पूछा है कि इस एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है पीरियडिक टेबल में। कभी कभी एटॉमिक नंबर दे के पूछ लेते हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर देते हैं और एलिमेंट का नाम पूछ लेते हैं। तो ये आप सारा रूल लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।